Hello, hello Vishwajit. Yeah, Ajay here. Yeah. Uh, Pankaj, Yeah, let's take interview. Yeah, take it. okay. So, Biswajit, hello, are you listening? Yes, Biswajit, sir. so tell me about yourself. Yes, yes, I am listening. Tell me about yourself. Okay, sir. My name is Biswajit Kumar. My father's name is R.P. Yadav, and I am from Dhanbad. My matriculation is completed in 2010, and my intermediate is completed in 2012. After that, my BTech Mechanical Engineering is completed in 2012-16 session. Then I worked in Gurgaon, Puja Expo India Private Limited, 1 year. After that, I joined post graduation diploma tool design course, which is in Jamshedpur Indo Danish Tool Room, and this course is completed in 2018 September, and then I joined a Bangalore automobile company, which name is Puja Expo India Private Limited, and then I worked here 1 year 3 months as a quality inspector. After that, I applied a hello. Yeah, I'm listening. Tell me. Yes. After that, I left my job, and then I joined Solidex India Private Limited company as a design engineer. Okay. Sorry for And then interrupt to Biswajit. I want to know yes, what is your total experience? I have a 3 year total experience, sir. Okay. So Biswajit, as you know that this vacancy for a fresher and you are joining as a experience, so you have no issue. I think you are joining as a fresher in my company. You know now. Yes, 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 sir. When I apply, I seen this vacancy is for fresher. Okay. That's I know better. Uh, I am no issue about that. ओके, तो हमारी कंपनी जो विश्वजीत है वो आपका ऑटोमोबाइल का पार्ट बनाती है। ठीक है, हम लोग होंडा के लिए काम करते हैं। जो हमारा ब्रांच है वो गुड़गांव में है। ठीक है, तो आपको इसमें रीलोकेट करने Okay. में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. No issue, sir. ओके, ठीक है विश्वजीत, तो आप हमें ये बताइए, आपको जैसा पता होगा कि ये जो पोस्ट है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर के लिए पोस्ट है। फ्रेशर के लिए हम लोग लड़के रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए, फर्स्ट Yes, एंगल sir. थर्ड एंगल जानते हैं आप? क्या होता है फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल? Yes, sir. First angle, sir. In a first angle, that means we describe it in a first angle. The first अगर angle of विश्वजीत हेलो projection is हेलो displayed in. विश्वजीत हेलो, अगर आपको इंग्लिश हाँ. में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, Oh, yes, sir. ओके। In a first angle, uh, the angle of projection is drawn in first quadrant, ओके, in which the object is placed in middle between plane and observer, ओके, and in a case of third angle, the observer is back, oh sorry, observe the plane is आप हिंदी में भी बोल uh, सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। तो सर इसमें थर्ड थर्ड एंगल में क्या है, जो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। ठीक है, इसमें जो है इसमें जो है ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू सर, 1 second sir,
For example, when I draw first angle of projection, then we suppose this is a object, and here is my our observer, and in back of object my plane. Then when the observer seen here, our object back view is draw in plane, and in a third angle projection, the observer seen our object. Then we directly, that means what I see, जो हम देख रहे हैं डायरेक्टली वही व्यू हमारा ड्रॉ होता है प्लेन पर। कौन से एंगल में? ए थर्ड एंगल में, जो हम जिस व्यू को हम डायरेक्टली देख रहे हैं वही व्यू हमारा प्लेन पे ड्रॉ होता है। बट फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि जो हम देख रहे हैं वो उसका बैक साइड वाला, ऑपोजिट साइड वाला व्यू हमारा ड्रॉ होता है प्लेन में। तो आपका जो ड्राइंग रहेगा, ठीक है, इन फर्स्ट एंगल, उसमें क्या होगा, जो बैक व्यू बनेगा Yes. आपका, उसमें जो अगर ड्राइंग होता है तो जो कंटिन्यूअस लाइन होगा वो बैक व्यू का कंटिन्यूअस लाइन रहेगा, जो फ्रंट व्यू रहेगा उसका वो हिडन लाइन रहेगा। ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट आंसर सही था। यस यस यस, फ्रंट व्यू हिडन लाइन रहेगा सर, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो बैक व्यू का बनेगा डायरेक्ट, ये फ्रंट व्यू हमारा इनविजिबल रहेगा। ओके, ठीक है, तो आपका वहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पूजा एक्सपो में? हेलो, हाँ हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो, यस यस सर। हाँ, तो आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पूजा एक्सपो में? Here I worked as a quality inspector, and I am checking the quality of all part. That means sheet metal component dimension I am checking. ओके, ठीक है, तो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए होंगे? यस सर, यूज किया हूँ। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? सर, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। ओके, और माइक्रोमीटर का? माइक्रोमीटर का सर 0.01 mm होता है। ओके, और आपने कभी एंगल प्रोटेक्टर यूज़ किया है? यस सर, एंगल प्रोटेक्टर यूज किया है, फॉर एंगल मेजरमेंट पर्पस यूज ये होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है एंगल हेलो? प्रोटेक्टर का? एंगल प्रोटेक्टर का सर जी जी, जी, एंगल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है सर। ओके, तो आप ये बताइए कि एंगल प्रोटेक्टर का यूज़ कहाँ कहाँ करते थे आप? जी, एंगल प्रोटेक्टर के यूज, जी जी, एंगल प्रोटेक्टर का यूज़ कहाँ कहाँ करते थे आप? sir, when we have a part for in a angle, that means when a curve shape or angular shape, we measure angle between two surface, two plane, then we use angle protector. Okay. And find out the angle, how many degree in angle. Are you there? माइक ऑन करो। Yes sir, I am there. Okay, so tell me what is feet? Feet, generally feet we use sir any two mating part. Okay. the feet, ये feet 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? हेलो, हाँ हाँ,
फिट 3 टाइप का होता है, ये क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। ओके। जीजीएनटी क्या होता है? GD&T, sir, GD&T is a international language. Its full name is Geometric Dimensioning and Tolerancing, ओके। in which total five group and 14 subgroup are available. Yes. ओके, तो कौन कौन सा उसमें साइम्बोल होता है, उसका नाम बता सकते हैं आप? यस सर, सैम्बल इसमें 14 जो 5 ग्रुप होते हैं, उसका उसका सभी का सेपरेट सेपरेट एक मतलब एक ग्रुप का सब ग्रुप है, जिसमें फॉर्म है, प्रोफाइल है, ओरिएंटेशन है, लोकेशन है एंड रन आउट है। ओके। ये आपका 5 ग्रुप हो गया। और इसमें डिवाइडेड जैसे फॉर्म में 4 सब ग्रुप है, जिसमें फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, सर्कुलरिटी, सिलिंड्रिसिटी है। ओके। और उसके बाद में प्रोफाइल में ये 2 सब ग्रुप है, जिसमें प्रोफाइल ऑफ लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ सरफेस है। एंड ओरिएंटेशन में 3 सब ग्रुप है, जिसका परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी एंड पैरेललिज्म है। ओके। एंड लोकेशन में 3 सब ग्रुप है, जो कंसेंट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी एंड पोजीशनिंग है। एंड लास्ट रन आउट है। रन आउट में 2 आपका सब ग्रुप आएंगे, जिसमें टोटल रन आउट एंड एक सर्कुलर रन आउट है। ओके। अगर सपोज विश्वजीत हमारी कंपनी में ऐसे वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट Yes. वैकेंसी है, ठीक है, लेकिन अगर हम आपको डिज़ाइन में लेना चाहें तो आप इंटरेस्टेड है डिज़ाइन में जॉब करने के लिए? Yes, sir. I am interested. Actually, this is a best opportunity for me because I done AutoCAD course in Indo-Danish tool room Ranchi. ओके। तो विश्वजीत यहाँ पे जो Yes. बेसिकली काम होगा सॉफ्टवेयर में, वो क्रियो में होगा, ऑटो कैड में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए, आप डिज़ाइन से क्या समझते हैं? व्हाट इज डिज़ाइन? Hello, हाँ, आप सुन पा रहे हैं मेरी I am बात? not listening you, sir. Yes. आप सबसे पहले ये बताइए कि आप डिज़ाइन से क्या समझते हैं? व्हाट इज डिज़ाइन? Sir, design is a language which is draw in 2D, two dimensional. We draw any 3D object and concept in 2D dimension. This is called drawing, sir. डिज़ाइन है ना। Hello. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिज़ाइन इट्स ए लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ वर्कर्स, ठीक है। ये एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है जो कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वर्कर से इस लैंग्वेज के थ्रू। इट्स कॉल्ड डिज़ाइन, है ना। Yes, sir. Design also design is a international language which is communicate which help communicate one department to another department. That means design, quality and production department. अच्छा, It's आप ये help बता सकते हैं टॉलरेंस to कितने communication. कितने प्रकार का होता है? टॉलरेंस टॉलरेंस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं सर। जनरली तो इंडस्ट्री में 2 टाइप का यूज करते हैं, जो एक यूनिलेटरल होता है, एक बायलेटरल होता है। अच्छा। और एक कंपाउंड टॉलरेंस भी होते हैं, ओके। जो रेयर क्रिटिकल सिचुएशन में या रेयर बहुत ही कम यूज होते हैं इसका। ओके, माइल्ड स्टील का डेंसिटी क्या होता है? माइल्ड स्टील का डेंसिटी 7.85 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है या किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है?
कंफर्म है आप पर सेंटीमीटर क्यों होता है? किलोग्राम ओ सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके। अच्छा ये बताइए, जैसे हमारी कंपनी में सीट मेटल से बहुत सारे रिलेटेड पार्ट्स हैं, ठीक है? आप सीट मेटल पार्ट्स भी चेक करते होंगे एज अ Okay. क्वालिटी इंस्पेक्टर, आप सीट मेटल पार्ट्स भी चेक करते होंगे वहाँ पे। यस सर। तो आप बता सकते हैं जनरली और मेरी कंपनी सीट मेटल का ही पार्ट्स बनाती है, ओके। तो वो जितना भी पार्ट है वो मैं चेक करता हूँ तो सीट मेटल और का थिकनेस कितना इनकमिंग होता इंस्पेक्शन भी करता है? हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम थिकनेस क्या होता है सीट मेटल का? सीट मेटल का थिकनेस सर 0.5 मिनिमम होता है, 0.5 mm टू अप टू 6 mm सर। ओके। तो सीट मेटल का गाइडलाइन आपको पता है? यस सर। सीट मेटल का गाइडलाइन मतलब अगर सपोज 1 mm का सीट है, ठीक है, उसको बेंड करना है, ठीक है, तो उसका जो इनर साइड का रेडियस होगा वो कितना होगा, वो आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसका कुछ नॉलेज है आपको? यस सर। अगर 1 mm का थिकनेस है प्लेट का और उसका मतलब रेडियस से डिफाइन करना है, तो जनरली ये फॉर्मूला होता है मतलब सीट अकॉर्डिंग टू सीट थिकनेस लेते हैं। जैसे कि अगर 1 mm आपका सीट थिकनेस है तो हमारा रेडियस जो होगा, बेंडिंग रेडियस जो होगा 1 mm का ही होगा, या मिनिमम 1 mm होगा और मैक्सिमम जितना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लेते हैं, बट मिनिमम 1 mm लेते हैं। ओके, ठीक है। और अगर सपोज मुझे होल करना है सीट में, ठीक है, होल से होल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये पता है आपको? होल से होल का डिस्टेंस? जी हेलो। हाँ हाँ बोलिए, सुन तो सर वो उसमें तो सर आप जैसे सभी होल के लिए डिफरेंट ये फॉर्मूला होते हैं। मैं होल की बात कर रहा हूँ विश्वित, ना मैंने आपसे स्लॉट पूछा है ना रेक्टेंगल पूछा है, बस होल की बात कर रहा हूँ। तो होल का क्या होता है? होल का 1 पॉइंट होल टू होल सर, हाँ होल टू होल 1.2t होता है, 1.2t प्लस आर होता है। इट्स ए 1.5t प्लस आर मिनिमम एंड मैक्सिमम इट्स ए 3.5t प्लस आर, ठीक है। अच्छा, अभी आपका करंट पैकेज क्या है विश्वजीत पूजा एक्सपो में? 20,000 सर। 20,000 CTC है या फिर इन हैंड है आपका? 20,000 इन हैंड है सर। CTC 2.8 है सर। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे चांस मिलता है ज्वाइन करने का, तो आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होगा यहाँ पे? सर सैलरी एक्सपेक्टेशन सर। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। एज पर कंपनी नॉर्म्स सर, माय सैलरी एक्सपेक्टेशन according to company what will provide that for this post। ओके, ठीक है। फिर भी आपका एक्सपेक्टेशन कुछ तो होगा कि आप मुझे इतना दोगे तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है ना? एक ओवरऑल एक्सपेक्टेशन बता सकते Yes, हैं sir. आप? सर ओवरऑल एक्सपेक्टेशन अप्रोक्स इन हैंड 25 अगर मिलती है तो मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी रहूँगा। ओके विश्वजीत,
Okay, Vishwajit. Ajay, do you want ask anything to Vishwajit? Now you can carry on. या हेलो विश्वजीत। मैंने मैं ये आपका सीवी देख रहा हूँ। हाँ, तो आपने पीजी कोर्स भी किया है क्या? यस सर, मैंने पीजी कोर्स किया है 2017-18 बैच में। मैंने 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्रोग्राम कंप्लीट किया है। सॉफ्टवेयर वगैरह सिखाया गया है उस पीजी कोर्स में? ये तो यहाँ पे मेंशन है डिजाइनिंग के लिए था ना आप लोग का ये पीजी कोर्स। हाँ, तो ये बताइए थोड़ा कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिखाए गए हैं? सर वहाँ पे ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स, क्रियो, कैटिया, एनएक्स और एनसिस हम लोग को बेसिक नॉलेज सिखाया गया था। यस तो हम लोग तो क्रियो के लिए बंदे खोज रहे हैं डिजाइन इंजीनियर में। हाँ, तो मैं आस्किंग यू द सम क्वेश्चन। हाँ, कि एक्सट्रूड कमांड के बारे में तो सुना होगा आपने। ये क्या होता है, एक्सट्रूड क्या होता है, इसके बारे में बताइए। ये क्रियो से आप पूछ रहे हैं सर? यस क्रियो में एक्सट्रूड कमांड स्केच को ये यूज करते हैं। मतलब किसी भी ज्योमेट्री जो है हमारा 2D स्केच है, फर्स्ट स्केच करके 2D स्केच करके बाद में उसका एक थिकनेस देना रहता है प्लेट का या कोई भी कंपोनेंट का, तो एक्सट्रूड कमांड यूज करके उसको देते हैं। स्वीप और स्वेप्ट ब्लेंड के बारे में सुना आपने? हाँ, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा। यस सर, स्वीप एंड स्वीप ब्लेंड के बारे में मतलब स्वीप कमांड यूज करते हैं सर। इसमें मिनिमम वन ट्रेजेक्ट्री रहता है और उसके अकॉर्डिंग एक स्केच, मतलब ट्रेजेक्ट्री मीन्स वन प्रोफाइल, एक पाथ रहता है, उसके अकॉर्डिंग एक स्केच करके किसी भी शेप का स्केच, किसी भी मतलब ड्राइंग को उसके अकॉर्डिंग, मतलब उस ट्रेजेक्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग एक सॉलिड पार्ट जनरेट कर सकते हैं या होलो पार्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें ड्राइंग करना है, तो ड्राइंग का प्रोसेस बता सकते हैं आप? ड्राइंग का कैसे, अगर कोई कंपोनेंट का ड्राइंग करना है, हाँ, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं आता है, मान लीजिए मुझे कुछ नहीं आता, मुझे स्टार्टिंग से करना है। हाँ, तो मुझे आप बताइए कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा। सर अगर ड्राइंग करना है तो इसमें आप फर्स्ट में, अगर मेरे पास कोई कंपोनेंट है तो उसका तो ड्राइंग रिवर्स इंजीनियरिंग थ्रू या फिर उसका डायमेंशन मेजरमेंट लेने के बाद में हम लोग पार्ट को फर्स्ट में सॉलिड मॉडल क्रिएट कर लेंगे। हाँ, बाद में सॉलिड मॉडल क्रिएट करने के बाद में अगर कोई उसका चाइल्ड पार्ट है तो उसका असेंबली होगा। असेंबली होने के बाद में उसका विश्वजीत, हम पूछ रहे हैं आपको, क्रियो में अगर कोई मॉडल है आपका तो उसको आपको ड्राइंग करना है। हाँ, तो आपका उस पे क्या प्रोसेस होगा? मतलब क्रियो में आपको मॉडल ड्राइंग में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ड्राइंग करना है, वहाँ पे कैसे लेके आएंगे, ये प्रोसेस कुछ तो आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ? हेलो, या विश्वजीत, टेल मी। क्रियो में पार्ट मॉडलिंग के लिए सर तो सिंपली हमारे पास डायमेंशन रहता है। जैसे हम सर ये सभी कमांड रहते हैं, जैसे स्केच है, उसके बाद में एक्सट्रूड है, फिर उसके बाद में फिलेट है, और ये 2-3 चेम्पर है,
उसके अकॉर्डिंग हम सर्कल है, फिर रेक्टेंगल है, ये सब कमांड। हेलो विश्वजीत हाँ। हेलो, हाँ विश्वजीत, ये मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास मॉडल है आपका क्रियो में, हाँ 3D मॉडल है, आपको उसका ड्राइंग डायमेंशन जाना है, तो रोज मैं पूछ रहा हूँ आप क्या करोगे? तो उसके लिए तो सर हमारा पार्ट जो है वो ऑलरेडी सेव होगा, तो वो डायरेक्ट हम ड्राफ्ट न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद में उसका ड्राफ्टिंग सेलेक्ट करेंगे। ड्राफ्टिंग सेलेक्ट करने के बाद में उसका ये कौन सा यूनिट में चाहिए वो उसका इंटरफेस आएगा, यूनिट सेलेक्ट करेंगे। हाँ, उसके बाद में हम डायमेंशनिंग करेंगे, तो उसमें एनोटेशन एक है, उसमें जाकर के और डायमेंशनिंग कर सकते हैं, या फिर डायमेंशन का एक कमांड है उसमें कर सकते हैं। क्रियो में असेंबली भी होता है, हाँ तो असेंबली के बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। असेंबली के बारे में थोड़ा बताइए कुछ। असेंबली में अगर आपको कुछ काम करना है, हाँ तो आप कैसे पार्ट क्रिएट करोगे या कैसे असेंबली जनरेट होगा, हाँ तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ ये आखिरी सवाल है मेरा। हाँ ऐसे भी तो हम लोग फ्रेशर के लिए ले रहे हैं। हाँ तो सर असेंबली में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट असेंबली में हम लोग ये कि दो पार्ट को या दो से अधिक कितना भी पार्ट हो तो उसको असेंबल करते हैं, तो एक मतलब उसको कंस्ट्रेंट करना रहता है। जैसे एक पार्ट को दूसरे पार्ट से बाई प्लेन हो सकता है, या बाई ऑब्जेक्ट के सरफेस को सिलेक्ट करके भी कंस्ट्रेंट करते हैं। ओके या एक्सिस को भी ओके विश्वजीत, ओके। तो विश्वजीत या हाँ पंकज, या मेरे तरफ से डन हो गया है, आप करो। ओके। हाँ तो विश्वजीत आप कितने दिन में ज्वाइन कर सकते हैं? अगर मेरी कंपनी आपको ज्वाइन करने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है तो आप कितने दिन में ज्वाइन कर सकते हैं? सर मिनिमम 15 डेज कंपनी की पॉलिसी है, तो मिनिमम 15 डेज लगेगी सर। ओके विश्वजीत, ठीक है विश्वजीत, जैसा होता है आपको हमारा HR कॉल या फिर मेल कर लेगा, ठीक है। थैंक यू विश्वजीत, थैंक यू अजय। यस। या थैंक यू पंकज।